Masters in Germany at top ranking university. Yes, you heard it right. Hello everyone, this is Privesh here, founder of Indo-German Education, and welcome to the Privesh Chauhan Show. And in this episode, I will be guiding you the ultimate guide, the one-stop solution for you, that steps, process, timeline, budget, payment structure, loan process, visa process, and task and responsibilities of Indo-German education for your masters in Germany. ये वीडियो दो सेगमेंट में होने वाला है. फर्स्ट सेगमेंट विल बी फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, सेकेंड सेगमेंट विल बी जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी. क्या डिफरेंस आएगा बजट में, क्या डिफरेंस आएगा प्रोसेस में, advantages, disadvantages, every single thing in just one video. Watch this video, stay tuned and this video till the end, just because I will be sharing you most important and very impactful insights which can guide you for your admission and visa process for your masters in Germany. Let's talk about why masters in Germany. सबसे पहले, so Germany is the global leader. Germany is the legacy of business, innovation, entrepreneurship, engineering, and at the very same time accuracy के लिए Germany is the global leader. Talking about Germany ने बहुत कुछ दिया है इस वर्ल्ड में, starting with the MP3 players, diesel engines, starting with the X-ray machines, your paracetamol, insulin, चाहे वो engineering sector हो, computer sector हो, SAP, one of the biggest German software company. Talking about the business part, Deutsche Bank हो गया, Allianz, one of the biggest इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी जर्मन कंपनीज है. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जर्मनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ द कार्स. 1886 में कार्ल बेंज इन्वेंटेड द फर्स्ट कार इन जर्मनी एंड उसके बाद जर्मनी इज डोमिनेटिंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, everything German brands. Germany is known for the most luxurious and most successful car brands. अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज की, रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रीन हाउस इकोनॉमी की, तो जर्मनी इज लीडिंग, ग्लोबल लीडर है जर्मनी इन दैट ऑल्सो. तो चाहे आप कोई सी भी फील्ड के हो, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी योर मास्टर्स, Germany will be your number one study abroad destination. So there were many reasons for studying in Germany. Talking about Germany जाने के लिए स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप है that is going to be your counseling. Yes, you heard it right. आपका पहला काउंसलिंग सेशन हमारे साथ ही होगा. इट कैन बी डन वाया जूम सेशन. इट कैन बी, हम लोग क्योंकि जूम सेशन पे भी सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम लोग जूम सेशन पे लाइव रहते हैं. आप कभी भी लिंक पे क्लिक करके मंडे टू सैटरडे हमसे काउंसलिंग ले सकते हो, या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारा सूरत ऑफिस फॉर एन ऑफलाइन कंसल्टेशन. ऑनलाइन पे भी हम लोग लाइव है, सूरत ऑफिस पे भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं. आप कभी भी हमें कनेक्ट कीजिए. Counseling is very important, plays a very impactful role in the entire studying masters in Germany process. क्योंकि I have been to Germany, I have learned that system, I have learned German language. मैंने बर्लिन जर्मनी से अपना जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट किया था. बर्लिन में जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद, at the same time after completing my German language via online methods, इंडियन स्टूडेंट्स को जो जर्मनी में है, बर्लिन, नॉर्डहाउजन, फ्रैंकफर्ट, डॉर्टमुंड, कॉटबस, ये सिटीज़ में मैं ऑलरेडी जर्मन सिखा चुका हूँ ऑनलाइन. उसके सिवाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जर्मनी आना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया, दुबई, कुवैत, नेपाल, कनाडा, यूके, इवन ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे थे हमारे साथ, उनको मैं ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज सिखा चुका हूँ. एट द सेम टाइम पैरेलली गाइडिंग देम फॉर देयर एडमिशन प्रोसेस एंड वीज़ा प्रोसेस. Till date, over the years, I have helped thousands of students and we have completed their studying in Germany dreams, and that too with 100% admission and 100% visa surety. Moving to the next part. आप सबसे पहले जब आप आओगे हमारी कंपनी में तो आपका काउंसलिंग सेशन होगा. हम लोग आपके डिजायर्ड सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपका यूनिवर्सिटी एंड कोर्स हम लोग शॉर्टलिस्ट करके देंगे जहाँ पे आप एलिजिबल हो. ये पूरा सेगमेंट एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा. सेकंड सेगमेंट हम लोग जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बनाएंगे, वो भी यही वीडियो में डिटेल में रहेगा ताकि आपको पता चले आपके लिए पब्लिक बेटर है या प्राइवेट बेटर है. इन द काउंसलिंग सेशन ऑल्सो हम लोग दोनों टाइप की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे. अगर आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा. अगर आपको जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो भी आपका इजीली एडमिशन मेरे यहाँ से हो जाएगा. एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ ऑफर लेटर्स, हर एक स्टूडेंट के 4 ऑफर लेटर, 5 ऑफर लेटर, एक स्टूडेंट के TU म्यूनिक का हो गया, TH इंगोलस्तात हो गया. कोई भी जर्मनी का यूनिवर्सिटी बाकी नहीं है जहाँ पे इंडो जर्मन एजुकेशन का स्टूडेंट ना पढ़ रहा.
तो सबसे पहले हम लोग आपका प्रोफाइल इवैल्यूएट करेंगे. इफ यू वांट पब्लिक यूनिवर्सिटी, वी विल शॉर्टलिस्ट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर यू. देन वी विल राइट द CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इवन हम लोग आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिख के देंगे ताकि आप आपके प्रोफेसर्स के पास जाके वो प्रिंट आउट्स निकलवा पाओ. उसके बाद देन वी विल अप्लाई फॉर द APS सर्टिफिकेट, ताकि हम लोग सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हम लोग मीटअप कर लें. जितनी भी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी विल टेक इट. आपका APS के लिए अप्लाई करेंगे. APS क्या होता है? एकेडमिक प्रूफ तले. APS का काम क्या है? टू मेक श्योर दैट अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस ओरिजिनल हो. तो APS क्या करेगा? आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा एंड वेरीफाई करने के बाद आपको एक APS सर्टिफिकेट देगा. और APS सर्टिफिकेट आ जाने के बाद देन वी हैव टू अपलोड इट ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल. तो आपका APS सर्टिफिकेट आया. आपका यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा मीनवाइल. तो वंस यू गेट द APS सर्टिफिकेट देन वी विल सिंपली upload the certificate on your application portal. You will get the admission letter. Once you get the admission letter, then we will move to the next part of the journey, that is booking up the visa appointment date. हम लोग visa appointment का डेट बुक करेंगे. यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे. सेम टाइम पे आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो हम लोग आपका परचेस कराएंगे. ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है? दैट जर्मन एम्बेसी का एक सिंपल सा रूल है दैट 11 लाख रुपए आपको ब्लॉक करने हैं इन योर जर्मन बैंक अकाउंट. और उसमें से हर महीने आप 90,000 इंडियन रुपीज आप आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए जर्मनी से विड्रॉ कर सकते हो. तो हम लोग आपका ब्लॉक्ड अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे. उसके बाद मेरे यहाँ से ही आपका वीज़ा का CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, इवन वी विल गाइड यू एंड वी विल फिल अप योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. आपको कोई भी पेपर वर्क खुद से नहीं करना है. आपका वीज़ा फाइल पूरा मेरे यहाँ से ही प्रिपेयर होगा. अगर आप सूरत से हो, सिंपली मेरे ऑफिस पे विजिट करके आप तुरंत पूरी वीज़ा फाइल प्रिंटेड आपके लिए पहले से प्रिंट करके रेडी होगी. आप वीज़ा फाइल कलेक्ट कर सकते हो. अगर आप सूरत से नहीं हो, आपको डिजिटली वीज़ा फाइल आ जाएगा या फिर हम लोग आपके वीज़ा फाइल आपके घर पे कुरियर भी कर देंगे. नो प्रॉब्लम. So once you get the visa, then we will guide you completely for pick, drop, accommodation, city registration, bank account opening, ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक कैसे कराना है, वीज़ा को कैसे एक्सटेंशन कराना है. ये पूरा प्रॉपर आपको गाइडेंस हम लोग कंप्लीट करके आपको देंगे. टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी पार्ट कि आपका क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या एकेडमिक्स होना चाहिए. तो टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, तो अगर आपको मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना है तो आपका 10th, 12th की लिविंग सर्टिफिकेट, बैचलर्स के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री एंड ऑफ कोर्स योर APS सर्टिफिकेट. ये लगता है टू अप्लाई फॉर द जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी. टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, तो परसेंटेज का कोई भी एक लिमिट नहीं होता, फिक्स लिमिट नहीं होता है. मेरे यहाँ पे 6.2 CGPA पे भी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन है. 5.9 CGPA पे भी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपके 8.8, 9, 8.5, 7, 7.5 या अबव 9 CGPA है तो ही आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो और आपको ऑफर लेटर भी आ सकता है. तो जब आप आओगे हम लोग आपका प्रोफाइल इवैल्यूएट करके देंगे इजीली. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्मन पब्लिक एंड प्राइवेट, वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो स्टे ट्यून टिल द एंड फॉर द कंप्लीट गाइडेंस. ओके, तो ये बात हो गई आपके डॉक्यूमेंटेशंस की. अभी हम लोग बात करेंगे आपके बजट की कि आपको कितना पैसा लगता है. दैट अगर आपको मास्टर्स करना है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से, अगर आपको मास्टर्स करना है तो सबसे पहले APS का खर्चा दैट गोज अराउंड 18,000 इंडियन रुपीज. फिर जर्मनी में क्या होता है, अगर आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करनी है तो देयर इज अ मीडियम विच इज कॉल्ड यूनियासिस. डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटीज में देयर आर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, आपको अप्लाई करना होता है यूनियासिस के थ्रू. अभी यूनियासिस क्या है, तो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड उनकी एडमिशन टीम के पास इतना टाइम नहीं हो सकता दैट वो हर एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करे, वेरीफाई करे और उसके बाद वो एलिजिबिलिटी चेक करे और फिर एडमिशन के लिए आगे बढ़े. तो दे हैव हायर्ड अनदर बॉडी, अ थर्ड पार्टी बॉडी विच इज इन बर्लिन जर्मनी. यूनियासिस्ट इज लोकेटेड इन बर्लिन जर्मनी. उनका ऑफिस बर्लिन जर्मनी में है. तो वो लोग आपके एलिजिबिलिटी देखेंगे. तो आपको यूनियासिस्ट को एप्लीकेशन चार्जेस पे करना होता है. तो 75 यूरो लगता है पहली एप्लीकेशन का, 30 यूरो लगता है रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन का. तो अगर आप 5-6 एप्लीकेशन करते हो तो अप्रॉक्स 20,000 इंडियन रुपीज़ आपका लग जाता है यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने का. तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनियासिस्ट
चेक करता है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आपका प्रोफाइल जो है वो यूनिवर्सिटी तक फॉरवर्ड होगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट सारी ओके होगी तो ही आपका प्रोफाइल यूनिवर्सिटी तक फॉरवर्ड होगा, बाकी आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड नहीं होगा, वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो वी हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन वी मेक श्योर दैट आपका पूरा प्रॉपर वे में सारे डॉक्यूमेंटेशंस अपलोडेड हो, एक सही तरीके से एप्लीकेशन हो, ताकि यूनियासिस का जो पैसा है वो वेस्ट ना जाए। अप्रॉक्स 20,000 इंडियन रुपीज़ लगता है यूनियासिस के थ्रू एप्लीकेशन करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे यूनियासिस इज़ नॉट द पाथवे, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एप्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे भी डिपेंड करता है दैट यूनिवर्सिटी के पोर्टल के तो एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है ना, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का जो चार्जेस है वो अप्रॉक्स आप 20,000 इंडियन रुपीज़ आप लेके चल सकते हो। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट आपके पास ऑफर लेटर आएगा जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो जैसे ही जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आता है, फ्री यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन फीस नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपको पे करना होता है। ये अमाउंट क्या है? आपको अप्रॉक्स 150 यूरो, 350 यूरो या 70 यूरोस, 80 यूरोस के आसपास का एक अमाउंट आपको यूनिवर्सिटी को पे करना होता है एज अ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल एडवांटेजेस भी आते हैं। तो ये पे होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एनरोलमेंट लेटर या मैट्रिकुलेशन लेटर आपको प्रोवाइड करेगा, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोवाइड करेगा, वो लेटर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट आपका ओपन किया है उसमें आप ट्रांसफ़र करोगे 11,940 यूरोस, अप्रॉक्स 12,000 यूरो, 11 लाख का वो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करोगे। फिर आप जब फाइल सबमिट करने जाओगे तब आपको खर्चा आएगा 7,500 इंडियन रुपीज़ का। VFS का चार्ज है। अगर आप प्रीमियम लॉन्च लेते हो, प्रीमियम लॉन्च के भी अपने बेनिफिट्स है, आपको एक प्रॉपर प्रीवेसी मिल जाता है, आपको क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ता है, डेडिकेटेड VFS के एक टीम मेंबर आपको आके गाइड भी करते हैं। अगर आपका कोई प्रिंट आउट रह गया है तो आप वहाँ पे बैठ के प्रिंट आउट कर सकते हो, एंड ड्रिंक्स एंड यू ऑल्सो गेट बेनिफिटरी स्नैक्स, ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, ताकि आप एकदम रिलैक्स मोड में और अच्छे से आप आपकी फाइल, वीज़ा फाइल सबमिट कर सको। उसका एडिशनल खर्चा आता है आपको 3,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास। वीज़ा फाइल सबमिट करने के बाद आपको 50,000 इंडियन रुपीज़ आपका फ्लाइट टिकट का लगता है और 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ कैश जो आप जर्मनी लेके जाते हो। अभी ये कैश आपको जर्मनी लेके क्यों जाना है? क्योंकि जर्मनी में आपका रेंट हो सकता है, अगर छोटा सिटी है तो 300 यूरो के आसपास, बड़ा सिटी है तो 350 to 450, 500 यूरोज़ के आसपास आपका रेंट जाता है। उतना ही आपका पैसा जो है वो डिपॉजिट में जाता है और बाकी का आपको इन हैंड कैश चाहिए। तो हमारा जो भी स्टूडेंट जर्मनी जाता है, हम लोग उनको हमेशा रिकमेंड करते हैं आप एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास यूरोज़ में कन्वर्ट करके आप जर्मनी लेके जाइए। आपको फॉरेक्स कार्ड में लेके जाना है, कैश लेके जाना है, वो सारा गाइडेंस आएगा। अगर आप सूरत से हो तो सिंपली मेरे ऑफिस आके आपका कैश भी कलेक्ट हो जाएगा वाया इंडो जर्मन मनी ट्रांसफर सर्विसेज, आपको पक्का बिल भी आएगा। टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स पार्ट, तो अगेन वी हैव बैंकिंग पार्टनर्स जिनके थ्रू आपको डेफिनेटली फॉरेक्स कार्ड भी सेम डे इशू हो जाएगा। जैसे ही आपका वीज़ा आएगा वेरी नेक्स्ट डे हम लोग आपका फॉरेक्स कार्ड भी इशू कर देंगे। जब भी बजट की बात आती है तो स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न दैट उनका लोन होगा या नहीं होगा। तो यस, डेफिनेटली उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस आएगा। एट इंडो जर्मन एजुकेशन वी हैव 20 बैंकिंग पार्टनर्स। तो वो लोग आप जिसमें कोऑपरेटिव बैंक भी है, नेशनलाइज बैंक भी है, प्राइवेट बैंक सेक्टर भी है, पब्लिक बैंक्स भी है। तो ये बैंक के ऑफिशियल्स आपको कनेक्ट करेंगे, दे विल गाइड यू एंड आपका एलिजिबिलिटी चेक करके आपको प्रॉपर वे में आपको गाइडेंस मिलेगा दैट आपका लोन होगा या नहीं होगा। लोन होगा तो वही लोग आपको कंप्लीट करके देंगे और ये सारा प्रोसेस भी आपका घर बैठ के ही होगा। आपको बैंक के बार बार धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोन का आपको प्रॉपर गाइडेंस आ जाएगा। लोन एलिजिबिलिटी के लिए आपको डेफिनेटली जैसे ही आप रजिस्टर करोगे वी विल अरेंज अ कॉल बैक फॉर यू ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, दैट इज हमारे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे जर्मनी में। अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको हमारे एंड से क्या क्या सपोर्ट आएगा। तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल इवोल्यूशन, सेकेंडली यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, थर्ड इज CV SOP LOR, सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हम लोग मीटअप करके देंगे। चौथा इज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना, आपका APS सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करना, ऑफर लेटर लाना, APS लाना। उसके बाद हम लोग वीज़ा का CV SOP कवर लेटर फिनांस ओवरव्यू लिख के देते हैं। आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट का डेट बुक होता है, फिर आपको वीज़ा फाइल सबमिशन के लिए प्रॉपर गाइडेंस आ जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं ना आपको लाइव सपोर्ट पे मिलती है, क्योंकि आपको कॉल्स टेक्स्ट तो ठीक है, ऑफिस विजिट तो ठीक है, लेकिन हम लोग सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जूम सेशन पे आपको रियल
लाइव अपडेट के लिए लाइव सपोर्ट टीम होता है। आप लिंक पे क्लिक करके फेस टू फेस आपका अपडेट ले सकते हो। हम लोग हमेशा 10:30 से 6 बैकएंड टीम है जो जूम पे लाइव रहेगा, तो वो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो वीज़ा फाइल प्रिपेयर हुआ, फाइल सबमिट हो गया। वीज़ा आने के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा फॉर पिक, ड्रॉप, एकोमोडेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, ब्लॉक्ड अकाउंट अनब्लॉक, वीज़ा एक्सटेंशन का एक प्रॉपर गाइडेंस आपको आ जाएगा, ताकि जर्मनी का जो आपका प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो। एडिशनली मेरे एंड से, बिकॉज आई हैव लर्न जर्मन लैंग्वेज, मैंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई है, सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन लैंग्वेज इन जर्मनी। तो हम लोग आपको जर्मन A1 और जर्मन A2 भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है दैट क्या हमें जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है अगर हमें जर्मनी में एडमिशन और वीज़ा चाहिए तो ऐसा नहीं है। आपका एडमिशन और वीज़ा विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी हो जाएगा, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में ही होता है। लेकिन आप जर्मनी जा रहे हो तो हम A1 A2 भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो आपको हेजिटेशन हो रही है जर्मन से वो भी आपकी दूर हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट जर्मनी का ये जो पूरा प्रोसेस है आपके लिए, हम लोग आपको ऑपरेट कैसे करेंगे, हम लोग ये डिलीवर कैसे करेंगे। तो एक व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जिसमें 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम लोग सारे रियल टाइम अपडेट्स आपको ग्रुप में देते हैं, जिसमें मैं रहूँगा, आप रहोगे, 2 टीम लीडर्स भी और 2 टीम मेंबर्स रहेंगे, 1 टीम लीडर रहेगा। दे विल मेक श्योर आपको मॉर्निंग में टेक्स्ट भी आ जाएगा कि दैट आज आपका ये काम स्केड्यूल है। इवनिंग में टेक्स्ट डेफिनेटली आएगा कि दैट आज आपका इतना काम हो गया, ताकि आपको रियल टाइम अपडेट मिले। और बाकी हम लोग जूम पे लाइव सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल है, कॉल्स पे अवेलेबल है, व्हाट्सअप टेक्स्ट पे अवेलेबल है, ऑफिस विजिट्स के लिए अवेलेबल है, ताकि वी कैन मेक अश्योर, रेस्ट अश्योर्ड दैट आपका घर बैठे बैठे, भले आप सूरत से हो, आउट ऑफ सूरत से हो, आप इंडिया में कहीं से भी हो, हमने यूके से स्टूडेंट्स को जर्मनी भेजा है, वी हैव, वो भी उनको कभी भी हमारे ऑफिस आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, पंजाब, जम्मू, केरला हो गया, कोलकाता हो गया, आसाम हो गया, राजस्थान, हर जगह से हमारे यहाँ पे, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार से स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट्स हैं। तो उनको कभी भी मेरा ऑफिस विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडो जर्मन एजुकेशन लाइव रहता है, लिंक पे क्लिक करके फेस टू फेस बात हो ही जाएगा। तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो कोई भी इंडिया का कोई भी कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। लाइव बैठ के काउंसलिंग देना, लाइव बैठ के आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करके देना। और जो जर्मन लैंग्वेज है ना, वो भी आपको ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स आते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप हर जगह आप देखोगे ना तो आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज बेचे जाएंगे कि भाई A1 फॉर दिस मच मनी, A2 रिकॉर्डेड कोर्स फॉर दिस मच मनी। लेकिन व्हाट आई बिलीव दैट अगर किसी स्टूडेंट को जर्मन सीखनी है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक थोड़े अमाउंट तक ही हेल्प कर सकता है, लेकिन जो आपका स्पीकिंग का फ्लुएंसी है वो बढ़ाने के लिए लाइव लेक्चर इज़ द ओनली की, और वो हमारा फैकल्टी मेक श्योर करेगा। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल्स हमारे देखने मिलेंगे दैट अवर इंडो जर्मन एजुकेशन स्टूडेंट्स कितना फ्रिक्वेंटली जर्मन बोलते हैं। A2 लेवल पे आते आते तो एक अच्छी फ्लुएंट जर्मन भी उनकी इजीली हो जाती है। लोन सपोर्ट हो गया, एडमिशन हो गया, वीज़ा सपोर्ट हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एज इट इज रहता है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए। अभी वो स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेजर डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में 1.5 साल का या 2 साल का ही मास्टर्स अवेलेबल होता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को 1 साल का मास्टर्स कंप्लीट करना है कि जल्दी से पढ़ाई करके जल्दी से जॉब सीख कर वीज़ा पे जाना है, तो उनके लिए जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेनिफिशियरी रहेगा एज कम्पेयर टू अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। अभी I will be explaining about the segment 2, that is about German private university. So what are the reasons why you should choose a German private university? पहला रीजन ये होता है that अगर आपका एनाबिन पोर्टल पे अगर आपका डिग्री आपका यूनिवर्सिटी H+ स्टेटस पे नहीं है, तो अभी जर्मनी में क्या होता है दैट एनाबिन करके एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे आपको 3 कैटेगरीज आपको मिलेगी, H+, H- एंड H+-। H+ मतलब ये होता है दैट आपका जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो डिग्री है वो वैलिड है और जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है। दैट मीन्स आपको APS भी आएगा, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो सकता है। चिंता करने की बात तब आती है दैट अगर आपने इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटी चूज किया है उसका स्टेटस H- है या फिर H+- है। उन केसेस में क्या होता है दैट H- मतलब आपका डिग्री रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है जर्मनी में,
या फिर H+- है, दैट मीन्स आपका जो यूनिवर्सिटी का डिग्री है उसका जर्मन यूनिवर्सिटीज को पता ही नहीं है दैट इनका रिकॉग्निशन क्या है। तो अगर आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसका सबसे पहला कंडीशन ये होता है दैट आपका जो बैचलर है वो हमेशा H+ यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, तो ही आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, और एल्स आप जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप आपका मास्टर्स कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस। उसके बारे में भी मैं इसी सेगमेंट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स होता है वो 18 मंथ्स या 24 मंथ्स का मिनिमम होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का ही मास्टर्स करना है, 1 साल का ही प्रोग्राम ऑप्ट करना है, तो आप जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसीडर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका IELTS सेंटर बेस्ड या फिर TOEFL सेंटर बेस्ड पे अच्छा स्कोर नहीं है तो इन दैट केस आपको जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, क्योंकि जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर भी हो जाता है, जबकि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको एक टॉप रैंकिंग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए तो 6.5 का रिक्वायरमेंट होता है। बाकी एट इंडो जर्मन एजुकेशन 5.5 पे भी हमारे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो एक टेस्टिमोनियल ऐसा भी है जिसमें स्टूडेंट के स्पीकिंग में 3.5 बैंड स्कोर है, फिर भी हमने उनका एडमिशन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कराया। 70 यूरोज एग्जैक्टली उनका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन था और उनका वीज़ा भी आ गया, और स्टूडेंट अभी जर्मनी में अपना मास्टर्स जस्ट अभी ये 2025 के पहले 6 महीने में उनका मास्टर्स भी कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट सूरत के ही है। जय सुखिया जी का आपको टेस्टिमोनियल मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों जगह पे आपको देखने मिलेगा। तो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो 6.5 चाहिए, बाकी 5.5 पे भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन इट इज सजेस्टेड 6 या 6.5 का बैंड स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट पे ही आपका प्रोसेस करना है तो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी विल बी एन गुड ऑप्शन फॉर यू। German Public University takes time for delivering the admission letter. That means आपको एटलीस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ जैसा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन चाहिए, जबकि इन जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी वी आर द एलुमनी ऑफ देम। आपको डायरेक्टली 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली विद अ कंडीशन, अगर आपकी सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है तो 2 दिन 3 दिन के अंदर भी आपको एडमिशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट की। तो जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, देयर आर मेनी जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो शॉर्ट कैंपस प्लेसमेंट देती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो दैट जर्मनी में मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे शॉर्ट कैंपस प्लेसमेंट मिल ही जाना चाहिए, तो आप एक जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसीडर कर सकते हो। जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अप्रॉक्स अगर आप 1 साल का मास्टर्स करना चाहते हो जर्मनी में तो 8 से 10,000 यूरोस के अंदर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो सकता है, जिसमें इंडिया से आप सिर्फ 2500 यूरो जैसा छोटा सा अमाउंट आपको पे करके जाना होता है, और जर्मनी जाने के बाद आप छोटी EMI में 12 महीने की EMI में आप जर्मनी में पे कर सकते हो। उसके बाद अब मैं ये कहना चाहूँगा दैट जो स्टूडेंट्स विदाउट APS अपना एप्लीकेशन करना चाहते हैं, दैट मीन्स अभी APS में क्या होता है दैट APS में आपकी डिग्री वेरीफाई होती है, लेकिन उस डिग्री को वेरीफाई करने के लिए 3 से 4 तरीके ही हैं। एक आइदर डिजी लॉकर पे आपके डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल होने चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी सारी मार्कशीट्स दिखनी चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल आईडी से APS में मेल जाना चाहिए, या फिर APS वाले अगर ऑफिशियल मेल पे मेल कर रहे हैं तो वहाँ से कंफर्मेशन चाहिए, मतलब .ac.in जैसी ऑफिशियल मेल आईडी से, ना कि @gmail.com @outlook.com हॉटमेल, ऐसा नहीं चाहिए। ऑफिशियल मेल आईडी होनी चाहिए, वहाँ से अगर रिप्लाई जाता है या मेल जाता है तो ही इन कंडीशंस के अंदर आपको APS सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है दैट आपका जो यूनिवर्सिटी है वो तीनों में से कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपका APS नहीं आ रहा है विद एनी रीज़न, तो इन दैट केस आपको एक जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेना पड़ेगा। फिर जर्मनी में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं एट इंडो जर्मन एजुकेशन, तो हम लोग 3 साल के बैचलर पे भी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देते हैं। बहुत सारे दूसरे और स्टूडेंट्स हैं, सूरत के हैं, राजकोट के हैं, जिनको हमने सिर्फ 3 साल की बैचलर डिग्री पे जर्मनी में मास्टर्स कराया, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कराया है और वो भी 100 यूरो के बिलो की ट्यूशन फीस में उनको मास्टर्स कंप्लीट करा के दिया है। लेकिन अगर आपको जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है, वो 3 साल का बैचलर प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आपको वही कोर्स पढ़ना है, तो वो कोर्स आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की जगह जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये रीजंस थे दैट अगर आपको पब्लिक
कुछ रीजंस की वजह से अगर आप ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये प्राइवेट ऑप्ट करने के ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोसेस एज इट इज रहता है। अभी बहुत सारी जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसमें एपीएस का आपको वेवर मिल जाता है। दैट मीन्स विदाउट एपीएस सर्टिफिकेट भी आप आपकी वीजा फाइल सबमिट करके 100% आपका वीजा ले सकते हो। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ दैट इंडिया का जो फास्टेस्ट विदाउट एपीएस का वीजा का जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे पे है। वी गॉट द वीजा विद इन 5 years। स्टूडेंट जब मुंबई फाइल सबमिट करके जब वो ट्रैवल बैक कर रहे थे, रास्ते में उनका वीजा आ गया था। तो वी हैव गॉट द फास्टेस्ट वीजा विदाउट एपीएस। और आपको मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स देखने मिलेंगे स्टूडेंट्स के विदाउट एपीएस जो हमने वीजा कराए हैं। तो अगर आपको विदाउट एपीएस करना है तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर ऑप्शन रहता है। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टोटल खर्चा कितना होता है, तो सीधा यूनिक की फीस, क्योंकि देखो एपीएस का खर्चा नहीं होता है, आपका एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है, सीधा आपको यूनिक की फीस पे करनी होती है जो 7 से 8 लाख अप्रॉक्स होती है। यूनिट टू यूनिट डिफर करता है, लेकिन आप अप्रॉक्स ये फीस लेके चल सकते हो, जिसमें इंडिया में आप 2500 इंडिया से 2500 पे करके भी आप जर्मनी जा सकते हो। फिर ब्लॉक्ड अकाउंट आता है 11 लाख का, वीजा की फीस 7500, फाइल सबमिट होने पे 50,000 की फ्लाइट टिकट और 1.5 लाख रुपए का कैश जो आप जर्मनी लेके जाओगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एवरेज या बिलो एवरेज प्रोफाइल होगी, जिनके एग्जैक्टली 45%, 50% या बहुत ही एवरेज प्रोफाइल है और गैप ज़्यादा हो गया है, तो वो स्टूडेंट्स भी जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली आइए, आपका जो भी प्रोफाइल होगा उन प्रोफाइल के ऊपर हम लोग आपका काउंसलिंग करेंगे, आपसे सब्जेक्ट पूछ के आपको यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज हम लोग सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे, फिर आपको हम लोग शॉर्टलिस्टिंग करके देंगे। मेरी कंपनी में ऐसा नहीं होता दैट जब भी आप आओगे तो डायरेक्टली हमारे पास लिस्ट रेडी होगा दैट आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। नहीं, आप आओगे, आपके बारे में आपका केस स्टडी करने के बाद ही हम लोग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो भी हम लोग आपको लोन का पूरा सपोर्ट आपको कंप्लीट करेंगे, पूरा गाइडेंस आपको आएगा। हमारे जो 20 बैंकिंग पार्टनर्स है, दे विल कम इन टच विथ यू, दे विल गाइड यू फॉर द लोन प्रोसेस ऑल्सो। एंड वीज़ा एडमिशन दोनों ही पॉसिबल है, चाहे आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी लो, जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी लो। एंड एट द एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट है। जो फैक्टर्स है वो यही फैक्टर्स है दैट यू नीड टू कंसिडर चूजिंग बिटवीन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इज बेटर फॉर यू और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज बेटर फॉर यू। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आती है पूरे प्रोसेस के अंदर जितना भी मैंने समझाया, so now what is the next step that you need to take? Call me now at 7211125555 या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करें आपका क्वेरी, दैट इज ऑन माय नंबर 9712425555। वहाँ पे आप आपका क्वेरी भेजिए, इमीडिएटली आपको काउंसलिंग का एक लिंक आएगा। वो लिंक पे मैं पूरे पॉडकास्ट में बार बार बोला हूँ दैट 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक मैं जूम पे लाइव रहता हूँ। आप वो जूम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे साथ फेस टू फेस बात कर सकते हो। एंड एट इंडो जर्मन एजुकेशन थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज हम लोग कर चुके हैं, एक स्टूडेंट के 4 एडमिशंस ला चुके हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एक दिन में हमने ऑफर लेटर्स दिए हैं, ऑन स्पॉट एडमिशंस दिए हैं। तो हमारे लिए नया बात नहीं है, आप आइए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एडमिशन श्योर शॉट होगा, वीज़ा श्योर शॉट होगा, एंड आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से भी हम लोग आपको डाइवर्सिफाई करके देंगे। अगर आपका जर्मनी का प्रोसेस नहीं पॉसिबल होगा तो भी आपको पहले ही स्टेप पे आपको मना कर दिया जाएगा। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को ये चीज़ भी रिपीट करता हूँ दैट विद गॉड ग्रेस वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क। तो हम किसी भी स्टूडेंट को फॉल्स होप, फेक कमिटमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। मेरे यहाँ पे सिंपल सा रूल है दैट हमारे पास काम इतना है, इसलिए हम लोग क्वालिटी ऑफ वर्क ही लेते हैं। दैट जो स्टूडेंट का काम हम लोग हाथ में लेंगे, एंड इट इज़ द परफेक्ट थिंग, इट इज़ 100% श्योर दैट अगर प्रिवेश चौहान आपका काम हाथ में लेगा, योर वर्क इज इन द राइट हैंड्स, आपका एडमिशन भी आ जाएगा, आपका वीज़ा भी आ जाएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कंप्लीट करें आपका काउंसलिंग सेशन विद अस लाइव, डायरेक्टली मेरे साथ आपका काउंसलिंग कीजिए। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे दैट इज @privesh_चौहान। हम लोग रेगुलर केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स अपलोड करते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो कर दो, इंडो जर्मन एजुकेशन एंड फ्लाई विद प्रिवेश। वहाँ पे भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको देखने मिलेंगे। रोज नवे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज होंगे, न्यू पॉडकास्ट, न्यू एपिसोड्स, बहुत कुछ आने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सी यू सून हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन। थैंक यू सो मच।